Good morning, students. We have already studied about the gist of the chapter The Enemy. So today we will read from the text as the chapter is very lengthy and question can come from any line from the text. So we will try to study or cover the chapter from the text also. So The Enemy is written by Pearl S. Buck. Before you read, the background of the chapter is given here. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? The chapter begins with a confusion, conflict, द्वंद, अंतर्द्वंद के साथ स्टार्ट होता है. The chapter is set when the Second World War was going on and there was a war between America and Japan. At that time, a Japanese doctor was standing outside his house and his house was on the land side of sea and towards the land, and at that time an American prisoner of war who was caught by the Japanese, he escaped from the Japanese soldiers and he came near the door of a Japanese doctor. Now the doctor was in conflict what to do, whether as a doctor he should save the life of the person और एज अ पेट्रियट देशभक्त होने के नाते ही शुड हैंड हिम ओवर टू द आर्मी. सो द चैप्टर बिगिंस. डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. So the Dr. Sadao's house was set on a Japanese coast, जापानीज तट पर, समुद्र के तट पर स्थित था और जहाँ पर डॉक्टर सदाओ छोटे बच्चे जब होते थे तब भी वहाँ पर खेला करते थे. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस was set on situated on the low square stone. It is not on the very high rock, it is low square stone and well above a narrow beach. And near his house, the path was going to the very tight way was going to the beach, and that path was covered with bent pines tree के से covered था. As a boy, Sadao was climbed the pines, supporting him on his bare feet, as he had seen men to do the South Seas where they climbed for coconut. When Sadao was very young or a kid, he saw the men were climbing on the coconut trees. In the same way, he tried to climb on the pine trees. His father had taken him often to the island of those seas. So usually his father take him to the islands and द्वीपों पर ले जाते थे, land covered part of sea, and never had failed to say to the little brave boy at his side, and he never forgot to say him, those islands yonder, this is the important statement, they are the stepping stones to the future for Japan. Yonder, that over there, these islands were the stepping stones to the future for Japan. These are the future of Japan. ये जापान की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है. Where shall we step them from them? Sadao asked seriously. As he was very small child, so
He said, उसने बोला कि यहाँ से होकर हम कहाँ जाएंगे. Before that the question is in, who was Dr. Sadao? Dr. Sadao was a Japanese doctor and a scientist. Where was his house? His house was set on a low square stone, uh, rocks well above a narrow beach that was outlined with the bent pines. Clear? And Sadao asked his father, where shall we step from them? तो हम कहाँ जाएंगे? Then father answered, who knows? His father had answered, who can limit our future? Future, it depends on us. Nobody can limit. इसकी कोई भी लिमिट नहीं है. It depends on what we make it. हम लोगों के ऊपर है कि हम क्या बनाते हैं अपने फ्यूचर को. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. जैसे उसके फादर बोलते थे वैसे ही करता था. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. उनके फादर ने कभी भी उनके साथ मजाक या फिर खेला नहीं करते थे. But he spent unlimited time with his son because he was very much concerned about his studies. ये सदाओ भी जानता था कि फादर Sadao knew that his education was his father's chief concern. Main aim क्या था? Just to make the son educated. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could learn of surgery and medicine. Just to become the doctor, Sadao was sent to America to study the medicine and surgery. डॉक्टर बनने के लिए 22 साल की एज में वो अमेरिका चले गए. He had come back at 30. At the age of 30 he came back, and before his father died he had seen Dr. Sadao become famous not only as a surgeon but a scientist also. तो फादर की डेथ से पहले फादर देख कर गए कि सदाओ एक अच्छे सर्जन ही नहीं एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक ऐसी रिसर्च कर रहे थे जिसमें घावों को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा, कोई भी उसका निशान नहीं रहेगा. इस तरह की रिसर्च कर रहे थे. And he had not been sent abroad with troops. As the war was going on, doctors were also sent with the troops आर्मी की टुकड़ी के साथ जाना उनको नहीं भेजा गया था. Also he knew there was some light danger that the old general might need the operation for a condition for which he was now being treated medically. Why he was not sent with the troops? Because the general of the country anytime requires surgery. मेडिकली जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो सदाओ से चल रहा था. फॉर दिस रीज़न ही वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. तो सदाओ को जापान में ही रखा गया था. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ. समुद्र से बादल उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द फ्यू डेज हैड at night dawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outline of little island near the shore and then come creeping up his beach below the house, writhing around the pines. तो अनएक्सपेक्टेड हीट से क्या एक्सपेक्टेड था कि हैवी रेन और फॉग आ सकती है. वार्मथ से अनएक्सपेक्टेड जो थी. तो समुद्र से मिस्ट धुंध उठनी शुरू हो रही थी और उसने जो समुद्र के बीच में आइलैंड था उसको कवर किया. देन क्रीपिंग द बीच बिलो द हाउस, और फिर घर के नीचे तक आ गई. रेदिंग अराउंड द पाइन ट्रीज को कवर करते हुए. रेदिंग कवर्ड. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. आफ्टर फ्यू मिनट्स फॉग घर को भी कवर कर लेगी. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the two children. When the fog will reach his house, then he will go inside the house with Hana, who was waiting with two children. But when he was thinking that, but at this moment, the door opened and she looked out a dark blue woolen harari. Harari is the
loose garment. Usually Japanese wore that over her kimono. Kimono is their traditional dress. She came to him. तो ब्लू कलर की एक लूज गारमेंट उसने पहना हुआ था, गाउन टाइप. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. एंड आकर उनके साथ खड़ी हो गई. He had met Hana in America, but he waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. हाना से वो जापान में मिला था, अमेरिका में मिला था, और हाना के साथ ही फॉल इन लव. ही वेटेड, कंफर्म करने के लिए वेट किया कि जापानीज़ है या नहीं हाना. हिज फादर वुड नेवर हैड रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. ही नोस, उसको पता था कि फादर हाना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हाना प्योर इन रेस, जिन कास्ट में उनकी मैरिज हो सकती है वैसी नहीं हुई तो किसी और कास्ट से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah. He thought, कई बार सोचता था कि अगर हाना उसे नहीं मिली होती तो वो किससे शादी करता. एंड बाय वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. और बाई चांस, कैसे कैजुअल वे से वो हाना से मिला. बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. बाई चांस अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर वो मिला था हाना से. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट. तो प्रोफेसर और उनकी वाइफ दोनों ही बड़े काइंड थे और वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स, दो बोर्ड, यद्यपि स्टूडेंट्स उनके साथ बोर होते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उनकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे. सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हैरलेज हाउस दैट नाइट. सदाओ अक्सर ये बात हाना को बताते हैं कि कैसे वो प्रोफेसर हैरले के घर बिल्कुल नहीं जा रहे थे उस रात. क्यों नहीं जाना चाहते थे? देयर वॉज अ रीज़न. द रूम्स वर सो स्मॉल. प्रोफेसर के जो घर के रूम्स थे बहुत छोटे थे. द फूड सो बैड. उन्हें उनका, बिकॉज द कल्चर इज़ डिफरेंट, तो फूड अच्छा नहीं लगता था उनके घर का. द प्रोफेसर्स वाइफ वॉज सो वॉल्यूबल टॉकेटिव. प्रोफेसर की वाइफ बहुत ज़्यादा बोलती थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना. और वो वहाँ पर गया और हाना से मिला. अ न्यू स्टूडेंट, हाना नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और वहीं पर सोच लिया था कि वह हाना से प्यार तब करेगा अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो, अगर वो उसकी सेम कास्ट से फादर एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सब कंडीशंस पूरी होंगी तो. सो द मीनिंग ऑफ द हरारी इज़ गिवन हियर. अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमीनो. किमीनो ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर पहना जाता है. किमीनो ट्रेडिशनल ड्रेस है एंड हरारी इज़ वॉर्न ओवर दैट ड्रेस. Now he felt her hand on his arm and he was aware of the pleasure it gave him. तो अब हाना का हाथ वो महसूस कर रहा था और उसे काफ़ी आनंद आ रहा था. Even though they had been married years enough to have the 2 children. उनकी शादी हुए काफ़ी साल हो गए थे और अब उनके 2 बच्चे थे. For they had not married heedlessly. उनकी शादी heedlessly, जल्दबाजी में नहीं की उन्होंने. इन अमेरिका में दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल. उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करी. एंड हैड कम होम टू जापान. वापस जापान आए. व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जैपनीज़ वे. तो जब उनके फादर हाना से मिल लिए और उन्होंने हाँ बोल दिया तो पूरे जैपनीज़ ट्रेडिशनल वे से उनकी शादी हुई. ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. सदाओ और हाना ने सब बातें पहले कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी. और वो एक परफेक्टली हैप्पी कपल थे. शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म. और हाना ने अपने चीक्स, गालों को सदाओ के बाजू पर रख दिया. इट वॉज एट दिस मोमेंट व्हेन दे वर स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ देयर हाउस. एट दैट मोमेंट, उसी समय
that both of them saw something black come out of the mist. दोनों ने देखा कि जो सी से मिस्ट उठ रही है, धुंध उठ रही है, उसमें से समथिंग ब्लैक इज कमिंग आउट, कुछ ब्लैक सा निकल रहा है. इट वॉज अ मैन. ये कोई आदमी लग रहा था. ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन. अचानक समुद्र से उछल कर निकला था. फ्लंग, इट सीम्ड, ऐसा लगा उनको कि जैसे जंप करके आया है. टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. अब वो समुद्र से जब बाहर निकल कर ब्रेकर लड़खड़ा कर चल रहा है. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. कुछ लड़खड़ा कर कुछ कदम चले. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. धुंध में उसकी बॉडी की आउटलाइन दिखाई दे रही थी. हिज आर्म्स अबव हिज हेड. और उसकी जो बाजू थी सर के ऊपर थी. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. तब धुंध ने उसको कवर कर लिया और वो दिखना बंद हो गया. हु इज़ दैट? हाना क्राइड. हाना एकदम चिल्लाई कि सामने से कौन आ रहा है. शी ड्रॉप्ड सदाउ's आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. उसने हाना की सदाओं की बाजू एकदम साइड में कर दी और दोनों झुककर, लीन्ड ओवर, झुककर सपोर्ट लेकर रेलिंग की वरांडा में नीचे झुककर देखने लगे. नाउ दे सॉ हिम अगेन. दोबारा दिखा. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. अब ये आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल क्रॉल कर रहा था. क्रॉल जैसे छोटा बच्चा अपने घुटनों के बल चलता है और हाथों के बल, तो उस तरह से चल रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. तब उन्होंने देखा कि वो आदमी वहीं गिर गया है, चेहरे फेस के बल, और वहीं लेट गया है. अ फिशरमैन परहैप्स. शायद कोई मछुआरा होगा. सेड, सदाओ सेड. वॉश्ड फ्रॉम हिज बॉट. शायद उसकी जो बॉट होगी वो बह गई होगी. ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम विद हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग. फटाफट सदाओ भागकर नीचे सीढ़ियों से उतरा और उसके पीछे पीछे हाना आ रही है और उसकी जो ड्रेस की जो स्लीव्स हैं वो उड़ रही थी. अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस. सदाओं के घर के 1-2 मील की दूरी तक फिशरमैन ही रहते थे, फिशिंग विलेजेस से. बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल खाली तट था. डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक तट था, रॉक्स थी. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. सर्फ जो वेव्स आकर टकराती हैं रॉक के साथ, तो जो झाग बनती है. Somehow the man had managed to come through them. किसी तरह से इन रॉक से न टकराकर आदमी समुद्र में से बाहर आ गया. He must be badly torn. Torn, injured. Here the contextual meaning is torn, injured. तो यह आदमी बुरी तरह घायल होगा, injured होगा. They saw when they came toward him that indeed it was so. जब उसके करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऐसा ही था. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू. जो उस आदमी के आसपास की सैंड थी वो रेड हुई हुई थी ड्यू टू ब्लड. ही इज़ वुंडेड. वुंडेड, इंजर्ड. यह आदमी इंजर्ड है. सदाओ एक्सक्लेम्स. ही मेड हेस्ट टू द मैन. हेस्ट, हरी. जल्दी से उस आदमी के पास गया. हु ले मोशनलेस. मोशनलेस, विदाउट मूवमेंट. हिज फेस इन द सैंड. उसका चेहरा सैंड में था. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद द सी वाटर. एक पुरानी सी कैप पहनी हुई थी उस आदमी ने जो समुद्र के पानी के कारण चिपकी हुई थी उसके सर से. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स. रैग्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और समुद्र में बहने के कारण वो वैसे भी फट गए थे. रैग्स मीन्स टॉर्न. सदाओ स्टॉप्ड. सदाओ रुका. हाना एट द साइड एंड टर्न द मैन्स हेड. दे सॉ द फेस. और हाना साइड पर खड़ी हो गई और उन्होंने आदमी को टर्न किया और दोनों ने उसका चेहरा देखा. अ वाइट मैन. हाना विस्पर्ड. विस्पर्ड, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. तो धीरे से वो बोली कि ये तो वाइट मैन है, अमेरिकन है. येस, इट वॉज द वाइट मैन. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज
wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. तो that wet cap भी गिर गई और ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के बाल बहुत हफ्तों से कटे नहीं हैं. And upon his young and tortured face was rough yellow beard. उसके चेहरे पर येलो बियर्ड थी. Americans, as they were very fair, so their hair were also not black, they are of golden color. So yellow beard. He was unconscious and knew nothing that what they did for him. As he was unconscious, बेहोश था, he was not in senses, तो उसको नहीं मालूम कि हाना और डॉक्टर सदाव उसके लिए क्या कर रहे हैं. Now Sadao remembered the wound. First he lost to see the American, but now he recalled about the wound, about the injury, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. As he touched the wound as he searched the wound with his expert hands, as he touched the wound, the blood started flowing again freshly on the right side of his lower back. Back पर right side पर. Sadao saw that a gun wound had been reopened. सदाव ने देखा कि गोली लगी हुई है उसको और वो घाव खुल गया है. द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर. क्योंकि गोली लगी है और अंदर उसका पाउडर गया है तो आसपास की जो स्किन थी वो ब्लैक हो गई थी. समटाइम्स नॉट मैनी डेज एगो. तो ये बहुत दिन पहले की घाव नहीं है, मतलब आज ही कल में कुछ दिनों पहले ही लगा है. द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. टेंडेड मीन्स केयर. तो इस आदमी को गोली लगी है और उसके बाद केयर नहीं की गई. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वूंड. और बैड चांस ये था कि जहाँ पर गोली लगी हुई थी रॉक से भी उसको वहीं पर ही इंजरी आई थी. नाउ द क्वेश्चन, will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? Just guess. If he gave shelter to if he will give shelter to this American, he will be arrested or not? We will study here. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again. Hannah spoke in a slow voice, in a solemn voice, solemn, sad, गंभीर आवाज़ में बोली धीरे से कि ब्लड आना शुरू हो गया. द मिस स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय. अब धुंध ने पूरा कवर कर लिया था इन लोगों को और दिन के इस समय रात के इस समय में एक्चुअली कोई भी नहीं आता था. फिशरमैन हैड गॉन होम. वो सब लोग मछुआरे जा चुके थे. इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर्स दोज हु केम टू क्लीन द बीच, सफाई करने वाले, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड. तो वो उन्होंने भी दिन का अंत मान के वो भी चले गए करके. वट शिल वी डू विद द मैन, सदाओ मटर्ड बड़बड़ाना. ही वाज स्पीकिंग इन हिज माउथ, कि क्या करें इस आदमी का. बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ऑन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग. But Sadao's strange hands were ready to help this person to stanch, means to stop the flow of something, especially blood. They were ready to stop the blood. He packed the wound with the sea moss. समुद्र से जो काई निकली हुई थी उसने उसके साथ घाव को पैक कर दिया. इमीडिएट फर्स्ट एड जो देनी थी. एंड स्ट्रूड द बीच. स्ट्रूड मीन्स स्प्रेड ओवर देयर ऑन द सरफेस पर जो भी मॉस काई आई हुई थी उससे पैक कर दिया. द मैन वॉज मॉन्ड विद पेन, मॉन्ड क्राइड विद पेन इन हिज स्टूपर अनकॉन्शियसनेस. वो आदमी अपनी अनकॉन्शियसनेस में थोड़ा कराहा, पेनफुल, बट ही डिड नॉट अवेकन. लेकिन वो उठा नहीं, उसकी अनकॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं हुई.
The best thing that he would do be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Sadao answered himself that अच्छी बात ये होगी कि इसको again to put him in the sea, वापस समुद्र में फेंक दिया जाए. Now that the bleeding was stopped for the moment, कुछ देर के लिए अब उसका ब्लड रुक गया था. He stood up and dusted the sand from his hands. सदाओ खड़े हो गए और अपने हाथों को झाड़ा. Yes, undoubtedly, that would be best, हाना said steadily. तो हाना ने धीरे से बोला कि ये अच्छा ही होगा कि अगर हम इसको वापस समुद्र में फेंक दे तो. But she continued to stare down at the motionless man, looking hard. तो उसे देख रही थी continuously, उस बिना हिले डुले आदमी को. If we sheltered a man, a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. Sadao explained, अगर हम इस आदमी को अपने घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हम इस आदमी को एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को, देन वो इसको मार देंगे, तो ये मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी. इसके साथ काइंड थिंग, अगर हम कुछ दया दिखाना चाहते हैं तो इसको वापस समुद्र में फेंक दें, हाना ने बोला. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड. दे वर स्टेरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर. रिपल्शन इज द फीलिंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यू कैन से हेट्रेड ऑल्सो. नफ़रत को भी बोलते हैं. दोनों उसको घूर कर नफ़रत से देख रहे हैं. इनर्ट फिगर, जो आदमी अपने आप में अंदर खोया हुआ है. वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड. है क्या ये? देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. कुछ तो इसमें है जो ये अमेरिकन लग रहा है, सदाओ सेड. ही टुक अप द बैटर्ड डैमेज्ड टॉर्न कैप. उसकी उतारी. Yes, they're almost gone, was the faint lettering a sailor. Letters. तो उसकी कैप पर ऑलमोस्ट लेटर्स वो ख़त्म हुए थे, लाइट से थे. अ सेलर, उसके ऊपर सेलर लिखा होता है. ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. अमेरिकन वॉरशिप से ये आया हुआ था. ही स्पेल्ड इट आउट US नेवी, और उसके ऊपर लिखा होता है US नेवी. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तो ये आदमी युद्ध का बंदी है. युद्ध के दौरान इसको पकड़ लिया गया बाय जापानीज. ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली. हाना एकदम चिल्ला कर बोली, ये भाग निकला है जापानीज के हाथ से. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और इसी के कारण ये घायल है. इन द बैक, सदाओ एग्रीड. सदाओ इस बात से एग्री कर गए कि हाँ, ये भाग रहा होगा तो पीछे से गोली चलाई होगी. दैट्स वाई ही इज़ इंजर्ड इन द बैक. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन. एक दूसरे को देखने में वो हेजिटेट कर रहे थे. देन हाना ने एक फर्म रेजोल्यूशन लिया, फर्म डिसीजन लिया. कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी. क्या हम इसको वापस समुद्र में फेंक सकते हैं? इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आज. सदाओ ने बोला, अगर मैं इसको फेंक देता हूँ तो क्या तुम रेडी हो इसको समुद्र में फेंकने के लिए? नो, हाना सेड. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन. मैं नहीं, अगर आप अकेले कर सकते हो तो. सदाओ हेजिटेटेड अगेन. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over the police about without difficulty. सदाओ थोड़ा झिझका और उसने बोला कि अजीब बात ये है, the man is not whole, actually he is not complete, he is unconscious. और अगर ये complete होता तो मैं without any difficulty इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता. I care nothing for him. तो मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता. ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा एनिमी है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं. एंड ही इज़ द ओनली अ कॉमन फेलो,
और ये तो बिल्कुल कॉमन आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, कैसे मूर्ख सा दिखाई दे रहा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड एज ही इज़ इंजर्ड, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तो वो इंजर्ड पर्सन को हम समुद्र में नहीं फेंक सकते। हाना सेड, देन देर इज़ द ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम इसको अपने घर ले जाएं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने क्वेश्चन किया, लेकिन सर्वेंट्स, व्हाट विल द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम सीधा सिंपली उनको बता देंगे कि हमारी इंटेंट, विश सिर्फ इसको पुलिस को हैंड ओवर करना है। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हम ज़रूर करेंगे। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड द योर पोजिशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव हिज द मैन ओवर एज द प्रिजनर ऑफ वॉर। सदाओ, हमें सोचना होगा आपकी पोजीशन और बच्चों के बारे में, अगर हमें इस प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर नहीं किया तो, पुलिस को नहीं दिया तो। सर्टेनली, सदाओ एग्री, कहते हैं नो नो श्योर, हम पक्का दे देंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इसको ट्रीटमेंट देने के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचूंगा। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों इस बात पे एग्री कर गए, दोनों ने उस आदमी को लिफ्ट किया, उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था। लाइक ए फाउल, फाउल मुर्गा जिसको बोलते हैं, कॉक, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ द ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जिसको काफ़ी समय से भूखा रखा जाए और उसके सिर्फ पंख और उसकी हड्डियाँ ही रह जाए। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजुएं लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स एंड टू द इनसाइड द डोर ऑफ द हाउस, सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर घर के अंदर ले गए। द डोर ओपन इनटू द पैसेज, दरवाज़ा एक रास्ते की तरफ खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और नीचे रास्ते में से जाकर वो एक खाली बेडरूम की तरफ ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, ये सदाओ के फादर का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से उनकी डेथ हुई है इस बेडरूम को यूज़ नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, तो वहाँ पर कारपेटेड रूम था, तो मैटेड फ्लोर था, जैपनीज़ यूजुअली नीचे ही बैठते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, इस रूम में सब कुछ ट्रेडिशनल जैपनीज़ तरीके का था, सदाओ के फादर ओल्ड मैन को खुश रखने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन द फॉरेन बेड, जो अपनी लाइफ में कभी भी अपने घर में ना तो चेयर पर बैठे थे और कभी भी फॉरेन बेड, बेड अर्थ को बेड माना जाता है, तो दैट इज़ द ओरिजिनल बेड, तो उसी बेड पे सोए। फॉरेन बेड जिसे हमारे वुडन बेड्स होते हैं उन पर कभी नहीं सोए थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स, दीवार में जो अलमीरा बनी हुई थी वहाँ गई। एंड स्लिड बैक अ डोर, एक डोर खोला स्लाइड करके। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट रजाई, एक रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड, थोड़ी झिझकी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि सिल्क की कवर था उसका और प्योर वाइट फ्लावर्स वाला सिल्क उसके ऊपर कवर था। वाई शी वॉज हेजिटेटिंग, एज द मैन वॉज डर्टी, इट वॉज covered with mud and sand, etc. He is so dirty, she murmured in distress. Distress, she was upset. परेशानी में बोली कि ये आदमी कितना गंदा है। Yes, he had been better be washed. अच्छा होगा इसे वॉश कर दिया जाए। सदाओ agreed. सदाओ इस बात से एग्री कर गए। If you will fetch hot water, I will wash him. Sadao said, if you will fetch means bring hot water, I will clean him. Before giving treatment, he wants to clean the injured person, Pao, prisoner of war. I cannot bear for you to touch him. As Sadao was a very famous doctor and scientist, his work was not to clean the person. So she said, I cannot bear you to touch him. मैं ये सहन नहीं कर सकती कि आप इसको क्लीन करेंगे, टच करेंगे. वी शिल हैव टू टेल द सर्वेंट्स
ही इज़ देयर। हमें सर्वेंट्स को बताना होगा कि ये यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ। यूमी इज़ द मेड सर्वेंट who takes care of the children. So we have already discussed in minor character. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर इस आदमी को क्लीन कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, कंसिडर थॉट। सदाओ ने एक मोमेंट के लिए सोचा। लेट इट बी सो, ओके, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बताओ, मैं बाकी सर्वेंट्स को बताता हूँ। अदर सर्वेंट्स आर cook and a gardener. But the utter pallor, yellowness of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. But आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा पीला पड़ रहा था और अनकॉन्शियसनेस थी उसके फेस पर। तो सदाओ को स्टूप मीन्स झुक कर, पहले उसको झुक कर उसकी पल्स, उसकी धड़कन चेक करनी पड़ी, बाजू से नब्स चेक करनी पड़ी। इट वॉज फेंट, ये बहुत कम थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। सदाओ ने उस आदमी की छाती पर हाथ रख कर देखा। द हार्ट वॉज टू येट अलाइव, दिल भी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड अपॉन। सदाओ ने बोला अगर इसका ऑपरेट नहीं किया गया, सर्जरी नहीं की गई, तो ये पक्का मर जाएगा। सदाओ सेड कंसिडरिंग। सदाओ ने बोला और सोचने लगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट एनीवे, वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब क्वेश्चन ये है कि ये आदमी किसी भी तरह मरना नहीं चाहिए। वाई? अगर घर पे ये आदमी मर गया तो इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इस आदमी को घर के अंदर ले आए हैं। हाना क्राइड आउट इन फियर। हाना एकदम चिल्लाने लगी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ वी शुड लिव। हाना एकदम चिल्लाई, इस आदमी को बचाने की कोशिश मत करो, ज़िंदा रहेगा तो क्या होगा, और इस आदमी को क्यों ज़िंदा रहना चाहिए। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, मर जाएगा तो भी। सदाओ रिप्लाइड। ही स्टूड गेजिंग डाउन इन द मोशनलेस मैन। Gazing, looking. He started looking at the person who is not moving. This man must have extraordinary vitality. Vitality, energy. इस आदमी में कुछ तो अलग से एनर्जी है, और he would have been dead by now. Otherwise ये आदमी मर चुका होता। But then he was very young. ये काफ़ी यंग था। Perhaps not yet 25. शायद ये आदमी 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तुम्हारा क्या मतलब है कि ये ऑपरेशन के दौरान मर गया तो? हनास यस, सदाओ सेड। सदाओ ने बोला कि हाँ। इफ़ ही डाइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, दैट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ डॉक्टर, सो ही मस्ट लिव। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। तो हाना सोचने लगी, और उसने जब आंसर नहीं दिया तो सदाओ चल पड़ा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। किसी भी कॉस्ट पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, सी सेड। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले इसको वॉश किया जाए, क्लीन किया जाए, तभी सर्जरी कर पाएंगे। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। फटाफट वो सदाओ बाहर चला गया और हाना पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट एलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो अकेली उस आदमी के साथ नहीं खड़ा होना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। जब से अमेरिका छोड़ा है तो ये पहला अमेरिकन आदमी था जो उन्होंने देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम शी हैड नोन देयर। और अब उनका कोई लेना देना नहीं है जिनको वो अमेरिका में जानते भी हैं। हेयर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पर वो इसका दुश्मन है। अ मेनेस प्रॉब्लम है। लिविंग और डेड, अगर ये ज़िंदा रहता है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर मर जाता है तब भी इनके लिए प्रॉब्लम है। शी टर्न टू द नर्सरी चिल्ड्रन रूम हेयर एंड कॉल्ड यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old. तो यूमी से पहले बच्चों ने आवाज़ सुन ली,
और बच्चे उसे कॉल करने लगे और हाना को अंदर जाना पड़ा। बेबी बॉय जो 3 मंथ्स का है उसके साथ स्माइल करना पड़ा। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ। उसने बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर पर किस किया। यूमी कम विद मी, और बोला कि यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। मैं बेबी को बेड में लिटा कर आती हूँ। ही इज़ रेडी मीन्स ही इज़ अबाउट टू स्लीप, सोने वाला है ये। शी वेंट विद यूमी इन टू बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी जहाँ पर बच्चे प्ले करते हैं यहाँ पर, एंड साथ वाले रूम में गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, अपने बाजू में बच्चे को लिया हुआ था। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर, और यूमी ने नीचे रजाई बिछाई सोने के लिए। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और बेबी को उस क्विल्ट में सुला दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब बड़े ही आराम से वो दोनों किचन की तरफ चली गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, दोनों सर्वेंट्स डरे हुए थे सदाओ जो उनके मास्टर ने उन्हें अभी बताया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड अ फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप। ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि ओल्ड गार्डनर जो घर का काम भी करता था उसने अपनी मूँछों के ऊपर के बाल खींच डाले थे। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, और गार्डनर बोलता है कि मास्टर को, सदाओ को इस वाइट मैन के वुंड्स को, इंजरीज को हील, ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, ब्लंटली वेरी फ्लैटली, रफली, हाना को सीधे से बोल दिया। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस आदमी को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शूट, पहले इसे गोली लगी। देन ही वॉज कॉट हिम, देन सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम, तब इसको सी ने इंजरी दी, समुद्र में इसको चोटें लगी। विद हर रॉक्स, समुद्र की रॉक से। इफ़ द मास्टर हील्स वट द गन डिड एंड वट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन आस। अगर जो गोली ने किया है या समुद्र ने किया है, अगर मास्टर उसको ठीक करना चाहेंगे तो समुद्र हमसे बदला लेगा। आई विल टेल हिम वट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टिसली, कर्टिसली वेरी पोलाइटली, हाना ने जवाब दिया कि मैं ये बता दूंगी। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, तो हाना खुद भी फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हाना वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी नहीं थी जिस तरह से ओल्ड मैन था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक दुश्मन की मदद करना ठीक है। नेवर द लेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, तो हाना ने यूमी को बोल दिया कि हॉट वाटर की बकेट लेकर आदमी जिस रूम में वहाँ आ जाओ। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और आगे आगे हाना गई और पार्टीशंस जो डोर का था उसको खोला। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी पीछे आ रही थी। पुट डाउन द वुडन बकेट, लकड़ी की बाल्टी को वहाँ रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तो हाना वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, जब हाना ने देखा और यूमी उसके पीछे पीछे देख रही थी, उसने, हाना ने ऑब्ज़र्व किया कि यूमी के जो लिप्स थे वो दबे हुए थे दांतों के बीच में, और उसके चेहरे पर स्टबर्ननेस, ऑब्स्टिनेसी, हट्ठीपन, जिद्दीपन दिखाई दे रहा था। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, और यूमी ने रिप्लाई किया कि मैंने किसी वाइट आदमी को साफ़ नहीं किया। एंड आई विल नॉट वॉश्ड सो डर्टी अ वन नाउ, और मैं इस गंदे आदमी को अब भी साफ़ नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर स्वीयरली, एकदम गुस्से से हाना उस पर चिल्लाई। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर्स, तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश देंगे। कमांड्स ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स यू। देयर वॉज अ फायर्स a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hana felt unreasonably afraid. यूमी के चेहरे पर
एंग्री फायर से होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और रेजिस्टेंस विरोध का एक्सप्रेशन था। ऐसा एक्सप्रेशन देखकर हाना एकदम डर गई। unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened. क्यों डर गई? अगर सर्वेंट्स इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अगर इन्होंने बाहर जाकर रिपोर्ट कर दिया पुलिस को जो एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, तो then suddenly she became soft with Hannah. Hannah spoke softly with Yumi. Very well, she said with dignity. With respect, she said, okay, you understand, we only want to bring him to his senses. तुम समझती हो कि हम सिर्फ इसे होश में लाना चाहते हैं, so that we can turn him over a prisoner, ताकि हम इसको हैंड ओवर कर सकें पुलिस को। I will have nothing to do with it, Yumi said. Yumi replied कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. I am a poor person and it is not my business. मैं एक गरीब हूँ और ये मेरा काम नहीं है. Then please, Hannah said gently, very politely, she said, return to your own work. On work here to take care of children. तो जाओ अपना काम करो, ये तुम्हारा काम है. At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. यूमी रूम से चली गई और हाना उस आदमी के साथ, वाइट मैन के साथ रूम में अकेली. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर. अब हाना अकेली रह गई थी रूम में और उसे डर भी लग रहा था, तो क्योंकि वो रहना नहीं चाहती थी और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, गुस्से से बोलने लगी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये तो आदमी ही है, कुछ और थोड़ा ना है. एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक असहाय घायल चोट खाया हुआ व्यक्ति. नाउ द क्वेश्चन, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? क्या लगता है आपको कि हाना उसे खुद क्लीन करेगी और हेल्प करेगी? वी विल स्टडी. Okay, we will continue the chapter in the next lecture. Thank you.